Hello students, welcome to the another session of information and technology. So today we are supposed to start the next chapter after which we have finished in the last class. We have finished chapter 2, that is web application. If you go through the book, you will find in the next chapter we have word processor. But the syllabus that we have given to you or in the website, in that you will find that the next chapter that we are supposed to cover after web application, that is spreadsheet. So that was supposed to be covered in the month of July only, but it's not in a hurry. Like we can go in the same pace or in the same flow like we are going. After that, we will follow the schedule or the syllabus that is already there. And we have enough time because there are 2 chapters which is not there in the current syllabus. We will inform you accordingly. No need to panic about the syllabus that we are not supposed to cover. We have covered only those thing which is there in the current syllabus. We will skip those chapter which is not there in the current syllabus, and we will inform you in due course. So in spreadsheet, we will directly start with AutoSum. If you go through the book in page number 106, you will find the very first topic, that is AutoSum. Because it's supposed to be a kind of scenario where the students should have been familiar. It's already familiar with the basic structure or basic concept of spreadsheet. आपने क्लास 9 में बहुत सारी चीजें देखी. What is spreadsheet? What is data? What is workbook? What is worksheet? And different things. But still, before we begin, like I have opened this one of the document in spreadsheet in Writer. राइटर पे डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट को हम लोग कैल्क के नाम से जानते हैं. इन एमएस ऑफिस वी कॉल इट एक्सेल. Since it is there in Writer, in entire things explained in Writer, sorry, calc, we will go with the calc. ठीक है. तो ये मैंने पहले से सब कुछ डिजाइन करके रखा है ताकि मैं अपना टाइम थोड़ा सेव कर सकूं, एंड आई कैन एक्सप्लेन यू थिंग्स in much brief and much limited time. So like I told you, before we start anything in the chapter, we need to start the chapter with an introduction. We know spreadsheet is an application software which is used to store the data in an organized structure. ये डेटा को ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सेव करने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर स्ट्रक्चर लाइक रो एंड कॉलम. जितने भी रो एंड कॉलम है, कॉलम को हम लोग नेम करते हैं ए बी सी डी ई एफ से लेकर आपका लास्ट कॉलम कहाँ तक जाएगा. इन कैल्क आप कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल प्लस राइट एरो की प्रेस करेंगे तो यू विल गो टू द लास्ट कॉलम. ओके, it should goes to the last column. 1 minute, wait please. Yes, कंट्रोल राइट एरो की जैसे मैंने प्रेस किया, यू कैन सी आई हैव मूव टू द शीट 2, और जैसे आपको दिख सकता है द लास्ट कॉलम इज AMJ. ओके, दिस इज द लास्ट कॉलम इन कैल्क. और अगर आपको लास्ट रो देखना है, यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की. दिस इज द नंबर ऑफ रो, दैट इज 1048576. दिस इज द लास्ट रो ऑफ कैल्क. सॉरी. अब ये कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो आपको रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल. ईच एंड एवरी सेल इज हैविंग अ सेल एड्रेस. Where we will come to know the cell address, this is the area which is name box. Here we will get the cell address. How it is made, we all know. Cell address is made up with the name of column followed by number of row. तो ये कौन सा कॉलम है, ये L है. नंबर ऑफ रो कौन सा है, 7 है, तो इसको इसलिए हम लोगों ने इसका सेल एड्रेस हो गया L7. अब this is cell address. The entire screen is a workbook. In this workbook we have 3 sheets, sheet 1, sheet 2 and sheet 3. By default there are 3 sheets. You can add as many required, you can delete if not required. ठीक है, इसको sheet tab कहते हैं. इसका बाकी ऑप्शंस विंडो मोर और लेस सिमिलर है आपको एक्सेल में जिस तरह से आपने देखा है. दिस इज मेन्यू बार, दिस इज टाइटल टूल बार, दिस इज स्टैंड फॉर्मेटिंग टूल बार, दीज आर ऑल्सो फॉर्मेटिंग टूल बार और काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट सेल. सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल फीचर्स ऑफ कैल्क. तो कैल्क में मैंने पहले से ये एक शीट बना कर रखा हुआ है. इस शीट को मैंने डिजाइन किस तरीके से किया, मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देता हूँ. नॉर्मली आप तो कर लेंगे कि बस मैंने नॉर्मल सेल में जिसमें काम किया, बट नॉर्मल अगर जहां जहां पर मैंने मर्ज एंड सेंटर का यूज किया है किस तरीके से किया, लेट्स सी. इट वाज टाइप नॉर्मली लाइक दिस. राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ.
राइट साइड में आपको दिख रहा होगा मर्ज सेल। ये जब नॉर्मली मैंने टाइप किया था फर्स्ट सेल ए पे टाइप किया A1 पे, तो ये इस तरीके से दिख रहा था। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया जहां तक मुझे कॉलम को यूज करना था। उसको आप शिफ्ट के साथ एरो की के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। और मर्ज इन सेंटर इट इज देयर इन एक्सेल, बट इन कैल्क इट इज मर्ज सेल। आप इसका अलाइनमेंट वगैरह इस हिसाब से चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो भी बेटर लगे। ठीक है, रोल नंबर में भी मैंने 2 सेल को यूज किया है। आई हैव यूज्ड 2 सेल ओवर हियर। इसको मैंने मर्ज किया, सेंटर पे किया। ठीक है, इस तरह से नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ मैंने रैंडमली कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं। एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इनको मैंने से मर्ज एंड सेंटर किया है। इस मार्क्स जब बाय डिफॉल्ट इस तरीके से आपका मर्ज किया तो इस तरीके से दिख रहा था ये, बट आफ्टर दैट आई हैव पुट इट इन द सेंटर अलाइन्ड। जो भी हो, इस तरीके से मैंने एक डेटा स्टोर किया है, एक बेसिक सा, कि आपको समझा सकूं जितने भी टॉपिक है आज के। ओके, तो इतना अभी तक आपका जो भी था एक इंट्रोडक्शन था, एक बेसिक स्ट्रक्चर था। बॉर्डर कैसे इंसर्ट करते हैं, आप डेटा एरिया सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक आपको बॉर्डर चाहिए, माउस को नॉर्मल ड्रैग करके ऊपर पे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बॉर्डर एक बॉक्स। यू गो देयर एंड क्लिक इन द लास्ट ऑप्शन, you will get all border. Click there, you will get the border in your selected area. Now we are coming to the actual topic, AutoSum. AutoSum is a feature in Calc or in a spreadsheet package that helps to calculate the addition of given cell or value of a given cell automatically. तो जैसे कि अब यहाँ पर मैंने 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स को लिखा हुआ है एंड these marks are out of 100. अगर इसको मैं टोटल करना चाहूँ तो we know that we can put formula over here. Formula is equal to sum करके formula लिख सकते हैं. Many of you are familiar. I have explained this in class 9 also, but still, if I don't want to use formula, it is simple addition, so I can go for some basic structure or basic tool which is there in Calc. So what I have to do, I need to select the value along with the extra cell in which I want to get the total get displayed. After that, there is an icon of sum over here. You can see my pointer over here on the top in the left side. ठीक है, थोड़ा सा भी नीचे टॉप से इस पे जैसे क्लिक करेंगे, you will get the sum of the marks which is given there in the name of Amit. Now I have to add the marks of rest of the student. It is not necessary to go for this process. You have learned a feature in class 9. That feature is called autofill feature. We know autofill is used to just apply the same formula to different cell by dragging the cell from one to another cell. देखिए मैंने क्या किया, सेल को मैंने ड्रैग करने के लिए क्या किया, मैंने पॉइंटर को एग्जैक्टली इसके एजेस पे रखा, कॉर्नर पे। देखिए इसको पहले सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे जैसे रखेंगे, अभी ये पॉइंट एरो के शेप में है, जैसे इसको कॉर्नर पे लेके जाएंगे तो ये प्लस के शेप में आ रहा है, थोड़ा सा पतला शेप हो रहा है। इस तरह से एक्सेल पे भी होता है। एक्सेल पे ये नॉर्मली एक थिकर प्लस के साइन पे होता है, लेकिन जैसे आप उसको एज में एग्जैक्ट कॉर्नर पे ले जाते हो तो आपका वो प्लस जो होता है थिकर से थोड़ा थिनर हो जाता है। कैल्क में इस तरीके से दिख रहा है। इसको आप लेफ्ट माउस की को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और नीचे की ओर प्रेस करेंगे जहां पर आपको ले जाना है। सो दिस इज हाउ द एडिशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इज बीइंग जनरेटेड ओवर हियर. So this is the way to use the AutoSum feature. I think you have learned how to use AutoSum feature. Now, the next feature is there, conditional formatting. Listen, when we talk about normal formatting, we know what is normal formatting. जैसे मान लीजिए कि मुझे ये जो टॉप का 2 रो है इसके सारे सेल्स को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो मैंने एक यहाँ से चेंज कर दिया। अगर मुझे ये कलर पसंद नहीं है तो मुझे एक और कलर चेंज कर दिया। अगर मुझे सेल का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर सेल का कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, सॉरी सेल बैकग्राउंड, यहाँ पर जाकर आप सेल का कलर चेंज कर सकते हैं। सो देयर आर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्मेटिंग, द सेल फॉर्मेटिंग। ठीक है, वी विल डू सेल फॉर्मेटिंग ओनली इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बट what is conditional formatting? In conditional formatting, we make changes in a cell based on a condition. मतलब हम चाहते हैं एक कंडीशन देना, उस कंडीशन के बेसिस पे आपका सेल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, आप जो भी आप फॉर्मेटिंग देंगे। लाइक लेट मी जस्ट गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, उसको कैसे यूज करेंगे। ये टोटल आप देख रहे हैं 345 से लेकर 330 तक, मैंने इसको सेलेक्ट किया और कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया मैंने। आई हैव सेलेक्टेड ओनली दीज द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। नाउ द मार्क्स यू कैन नोटिस द मार्क्स आर देयर फ्रॉम 300 to 400 only, means the marks are not less than 300 and not more than 400. So I want to make ensure, मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो टॉपर है
जो टॉपर नहीं, या फिर मैं कहूँ द स्टूडेंट हु हैव गॉट मोर देन 350 मार्क्स, देयर सेल शुड बी हाईलाइटेड विद अ डिफरेंट कलर। तो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू फॉर्मेट, in there on the menu bar format, then go to conditional formatting. Then you can see here condition 1. I'm using only one condition. If I have to use multiple condition, I can go for the condition 2 and 3 also. Cell value is, cell formula is, मेरे पास value है, ठीक है, equal to, less than, greater than, अब जो भी यही चाहे यूज कर सकते हैं। मैं इसको greater than कर रहा हूँ। इस कितना से greater than, 350 से greater than। अब सेल स्टाइल आप उसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप उसका नया स्टाइल चाहते हैं, गो टू न्यू स्टाइल, मतलब आप क्या एक्चुअली में चेंजेस चाहते हैं। सो लेट्स गो टू नंबर, सॉरी फॉन्ट, एंड लेट इट इज इन कैलिबर। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे स्टाइल में चाहता हूँ कि जो 350 प्लस होंगे उसको थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, ठीक है, आखिरकार उन्होंने बहुत मेहनत की है। सो चलो एलिफेंट ही सही। रेगुलर है, इसको आप बोल्ड इटैलिक कुछ भी कर सकते हैं। साइज को आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये एलिफेंट फॉन्ट थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। चलो 345 इसको नॉर्मल जो एरिया भी आपका फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया, साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। आप इसको फॉन्ट इफेक्ट में जाकर आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। चलिए थोड़ा सा और इज्जत दे दिए, ठीक है। इसका अलाइनमेंट वगैरह चाहते हैं चेंज करना कि वो सेंटर पे आ जाए, तो उसको भी और थोड़ा सा बढ़ा दिए। बॉर्डर वगैरह एज इट इज रहने देते हैं। आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब मुझे कलर कॉम्बिनेशन का बहुत आइडिया नहीं है कि क्या सूट करेगा, मैं अपने हिसाब से एक चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड में चूज करना चाहता हूँ कोई एक पतला लाइट कलर, सियान चूज कर लिया मैंने। देखिए मैंने बहुत सारे फॉर्मेटिंग कर दिए कि जितना भी 350 का मार्क्स प्लस वाला होगा उसको इतने सारे फॉर्मेटिंग। आप एक भी कर सकते थे, आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते थे, आप सिर्फ फॉन्ट का बोल्ड भी कर सकते थे। एनीथिंग यू कुड हैव डन, बट लेट आई हैव जस्ट शोन यू कि किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं ओके में क्लिक कर देता हूँ एंड ओके। तो देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट है 7, only one student have got 375, means more than 350. That is why the things got changed. So this is how the conditional formatting works. And coincidentally, this student Vinod, actually in my batch in class 10, there was a student Vinod Goswami. He was the topper of our batch, and marks was not the same. Marks was more than this, but the things got सेम कॉन्सिडेंटली। चलिए तो 375 विनोद ने लाया और वो टॉप कर रहा है उसके क्लास में। 7 स्टूडेंट का क्लास है, ठीक है, ट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। सो आई वाज सेइंग, सो दिस इज हाउ ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क्स। और उसके बाद देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज करते हैं। अब एक है आपका नेक्स्ट टॉपिक, हाइडिंग कॉलम। मान लीजिए आप अपने सीट में से कोई कॉलम हाइड करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ का कॉलम मुझे हाइड करना है। आपको दिख रहा है डेट ऑफ बर्थ कौन सा कॉलम है? सी, कॉलम नंबर सी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कॉलम का हेडर ये है जहाँ पर मेरा पॉइंटर है, ठीक है। ये हेडर नहीं है, कॉलम का हेडर ये है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ऑप्शन दे रहा है आपको हाइड। डेट ऑफ बर्थ को हाइड करते हैं। अभी ये थोड़ा सा इरिलेवेंट लग रहा है, चलिए अब हाइड हो गया, आपको दिखेगा नहीं। मान लीजिए आपको बाद में मन कर रहा है कि ना, आई वॉन्ट द डेटा बैक इन माई सीट, ठीक है, आपको डेटा चाहिए वापस। मैंने आपको कॉलम चाहिए डेट ऑफ बर्थ, किसी ने कहा नहीं मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ। इन दैट केस हाउ यू विल मेक इट, हाउ यू विल ब्रिंग द थिंग, सेम थिंग बैक। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिमेंबर द थिंग और वी नीड टू मेक इट श्योर। देखिए आपका सेल भी यहाँ पर थोड़ा सा थिकर दिख रहा है, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि एग्जैक्टली मैंने इसके बाद का सेल और इसके बाद पहले का सेल, ये दोनों के बीच के सेल को हाइड किया है, बी और डी को। तो आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना होगा, दोनों बी और डी दोनों के हेडर को या दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। आफ्टर दैट क्लिक राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक इन शो। दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग बैक द कॉलम। तो रो हो कॉलम हो सॉरी, आप उसको हाइड कर सकते हैं इस तरीके से और अनहाइड इस तरीके से कर सकते हैं। हाइड करने के लिए राइट क्लिक करते हैं, जिसको सिलेक्ट हाइड करना है उसी को, और अनहाइड करने के लिए उसके आगे पीछे मतलब दाएं और बाएं दोनों, उसका जो बॉडीगार्ड है दोनों बॉडीगार्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग शो करते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर हाइड एंड अनहाइड कॉलम। देन इन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फ्रीज कॉलम एंड रोज। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फ्रीज कॉलम एंड रोज मतलब
आप मान लीजिए जैसे यहाँ पर अभी फिलहाल सिर्फ 77 स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए अभी आपको स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, इसको मैं अगर 100% पे भी कर देता हूँ, 180 के रेशियो पे है ये, जूम को थोड़ा सा नॉर्मल कर देता हूँ, जो एग्जैक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है ये 100% है। यानी आपको कितने स्टूडेंट्स को आप एक देख सकते हैं यहाँ पर 36 स्टूडेंट। आप देखिए हाउ मेनी रोज यू कैन सी 36। तो अब 36 आएगा, मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो 56 के बाद आप जैसे नीचे 36 के नीचे जैसे जाओगे तो आपका डेटा हाइड हो जा रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है, वेट अ मिनट सॉरी, जैसे आप जा रहे हो नीचे, देखिए आपको पता चलेगा कि नाम और कॉलम है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑर्डर आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सो what exactly happen when we have bulk of data and we have to enter number of rows, number of column, and it is not very much sure that exactly we are giving the correct data in the correct column or not. अब जैसे मान लीजिए नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ है, फिर हिंदी इंग्लिश उस तरह से। अब हमको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है ऊपर में, वहाँ आपको 36 रो तक दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन उसके नीचे तो दिख नहीं रहा। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको कॉलम, ये जो रो है उसको फ्रीज करने की जरूरत है। ठीक है, फ्रीज इज एन ऑप्शन, ये आपको एक्सेल में भी मिलेगा, कैल्क में भी मिलेगा, विच अलाउ अस टू फिक्स ए पर्टिकुलर रो और ए कॉलम इन द विंडो इटसेल्फ, सो यू इट इज नॉट मूविंग एनीवेयर, यू कैन जस्ट कीप इट एज इट इज। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके नीचे वाले रो को सिलेक्ट करना है कैल्क पे। नॉर्मली एक्सेल पे ऐसा होता नहीं है, कैल्क में आपको ठीक उसके नीचे वाले को, तो मैं जैसे मुझे ये हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ये वाला मुझे चाहिए, सब्जेक्ट मुझे चाहिए, बाकी को ऊपर से मतलब नहीं है। तो ये हिंदी इंग्लिश मैथ किसका है आपको समझ में आ रहा है, दिस इज रो थर्ड। ठीक है, मर्ज किया हुआ इसलिए एक साथ दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है 2 और 3 मर्ज किया हुआ है। तो अब मैं 4 को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि whenever we need to freeze the row or column we need to select the next row। अगर आप रो को हाइड फ्रीज कर रहे हैं तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट वाले रो को सिलेक्ट करेंगे। गो टू विंडो ऑप्शन, आप देखिए टॉप पे दिख रहा है आपको विंडो, मेन्यू बार में क्लिक इन फ्रीज। जैसे आप फ्रीज करेंगे देखिए थोड़ा सा बॉर्डर में चेंजेस आया। अब आप उसको नीचे स्क्रॉल कीजिए, आप जितना जाना है जाइए और लास्ट रो तक जाइए 1048576। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एज इट इज फिक्स रहेगा। इससे क्या दिक्कत, बेनिफिट क्या हो रहा है कि आपको हेडिंग्स दिख जा रहे हैं, आप इजीली करेक्ट डेटा एंटर कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो ऑप्शन है फ्रीज रो का ऑप्शन, ये उसके पहले के जितने रो है सारे को फ्रीज कर रहा है। ठीक है, इट इज देयर मेंशन इन योर बुक कि whichever row has to be freeze we need to click into the next row, उसके पहले जितने भी रो होंगे, सॉरी रोज होंगे, सारे को फ्रीज करेगा। अब उसको कॉलम को करके देखते हैं, इसको पहले अनफ्रीज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर और बहुत सारा डेटा है, आर एस तक दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पर और भी जा रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो मैं सही डेटा स्टूडेंट का डेटा डाल रहा होगा नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, लाइक इन द टाइम ऑफ क्लास 9 रजिस्ट्रेशन, क्लास 10 मार्क्स, वी हैव टू मेक एंश्योर दैट द मार्क्स आर गोइंग अगेंस्ट टू द करेक्ट स्टूडेंट्स। जब आप की कॉपीज की मार्क्स एंटर होती है थ्योरी करेक्शन के बाद, तो जो भी जहाँ पर भी सेंटर पर करेक्शन हो रहा है उस सेंटर पे ऑनलाइन मार्क्स का एंट्री किया जाता है। तो प्लीज डोंट कीप इट इन योर माइंड कि सुरेंद्रनाथ की कॉपी आपके स्कूल में ही होगी, चेक होती है। हर स्कूल की कॉपी कहाँ जाती है किसी को नहीं पता चलती है, पूरा बोर्ड का अपना सिस्टम है। आई वॉज जस्ट मेकिंग एग्जाम्पल कि जब भी मार्क्स एंट्री होती है तो हमें कॉलम को फ्रीज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि 40 क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली आपके मैथ में, आपके स्क्रीन पे 40 क्वेश्चंस कॉलम अगर मुझे देखेंगे, मुझे इसके अलावा 3-4 कॉलम एक्स्ट्रा होते हैं, रोल नंबर, बस स्टूडेंट नेम होता नहीं है, रोल नंबर वो भी इनक्रिप्टेड रोल नंबर होता है। तो रोल नंबर के बाद सारे कॉलम होते हैं, सारे एक क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो 40 कॉलम को अगर देखेंगे तो काफी छोटा दिखता है, उसको थोड़ा सा जूम जब तक नहीं करेंगे सही तरीके से दिखता नहीं है। तो उस केस में हमें रोल नंबर को फ्रीज करना पड़ता है। जैसे मैं अभी सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे मुझे इसको फ्रीज करना है। ठीक है, तो इसको फ्रीज करने के लिए आपको इसके बाद का कॉलम राइट टू द हेडर मतलब सी, यहाँ पर क्लिक करेंगे और विंडोज में जाएंगे और फ्रीज में क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप देखिए राइट भागिए, आप जितना जाना चाहते हैं जा, देखिए ऊपर आपका कॉलम नेम चेंज हो रहा है, आपको नोटिस अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका कॉलम फ्रीज हो चुका है।
आपको जहाँ जाना है जाइए, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपका एंट्री सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही स्टूडेंट के अगेंस्ट में हो रहा है या नहीं। सो दिस इज हाउ वी गो फॉर फ्रीज कॉलम एंड फ्रीज रो। आई होप आपको समझ में आया ऑटोसम कैसे यूज करते हैं, आपको ये भी समझ में आया कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, आपको फिर ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कॉलम को हाइड या कॉलम को अनहाइड कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैसे फ्रीज करते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज ब्रेक। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फीचर ऑफ एमएस एक्सेल और एनी स्प्रेडशीट पैकेज। हियर in calc I'm not in a position to show you the actual benefit of page break system, so a page break feature, that's why I'm moving into the excel purposely. I will tell you why. तो देखिए ये मैंने एक्सेल का एक सीट खोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझा पाऊंगा कि एग्जैक्टली हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है पेज ब्रेक फीचर का होना। तो जैसे ये एक डेटा है क्लास 7B का, मेरे पास एक डेटा था प्रमोशन लिस्ट का, सो आई हैव जस्ट केप्ट इट इन माई स्क्रीन कि आपको मैं समझा पाऊँ। तो ये डेटा आपको तो ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इस डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे डेटा को सेलेक्ट करना होगा। कभी भी अगर मान लीजिए इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए, सॉरी यहाँ तक है, मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं पहले पेज लेआउट में जाऊंगा और प्रिंट एरिया में जाकर सेट प्रिंट एरिया करना पड़ेगा, मतलब इतना एरिया मुझे प्रिंट में चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इट्स नॉट ओनली इन क्लास 10। आप 10 साल के बाद किसी भी कंपनी या किसी भी ऑफिस में काम करोगे, आपको ये फीचर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, जब हमारे पास सीट इस तरीके से डिजाइन किए हुए रहते हैं, उनको एक A4 साइज में प्रिंट निकालना पड़ता है, तो काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। तो मान लीजिए ये प्रिंट है, आपको तो स्क्रीन पे देख के समझ में आ गया होगा कि ये A4 साइज में निकलेगा, लेकिन पोर्ट्रेट पे बिल्कुल नहीं निकलेगा, ये लैंडस्केप में निकलेगा। वर्टिकल पे इसको हम प्रिंट नहीं निकाल सकते इतने सारे कॉलम, इसकी मुझे निकालना पड़ेगा लैंडस्केप में। तो उसके लिए पहले हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, लैंडस्केप बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आप इस तरह का प्रिंट निकाल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कॉलम का एक्चुअल साइज, मैं आपको पेज ब्रेक, अभी भी मैं पेज ब्रेक फीचर पे नहीं आ रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ जो जरूरी है मुझे लगता है। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको, इसको हम थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर लगे कि आपको कॉलम का स्पेस चाहिए आप वहां पे यूज कीजिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो जितना स्पेस बचा सके पेज ब्रेक का बिना किए, क्योंकि पेज ब्रेक से होता क्या है मैं आपको बताऊंगा उसका, अगर ये चीज नहीं करते तो पेज ब्रेक में दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको करके ही दिखा देता हूँ पेज ब्रेक, अगर इसको नहीं करने से। ओके, देखिए अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा, अभी प्रिंट में जाइए, प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, तो देखिए आपको कितना पेज दिख रहा है, 4 पेजेस नीचे, प्रीव्यू पेज 1 ऑफ 4। मुझे कितने पेजेस में चाहिए, 2 पेजेस में, यानी कहाँ से मेरा कॉलम भाग रहा है, देखिए टोटल और रिमार्क्स का कॉलम दूसरे पेज में आ रहा है। इसको प्रिंट निकाल के क्या करेंगे आप, 60 के देंगे बगल में, और कहीं पर भी देंगे तो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी अप्रिशिएबल नहीं है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं एक ऑफिस में। तो उस केस में आप यहाँ पर भी अभी पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक ऑप्शन लास्ट में ऑप्शन है व्यू, व्यू में जैसे ही जाएंगे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। आप जैसे पेज ब्रेक प्रीव्यू में करते हैं, व्यू में आप देखेंगे, इसको मैं जूम कर देता हूँ, आपको एक ब्लू डॉटेड लाइन दिख रहा है, यानी ये पेज 1 का बाउंड्री है, ठीक है। पेज 1 ब्लू डॉटेड लाइन के अंदर दिख रहा है, उसी के नीचे आपको पेज 2 दिख रहा है, और ब्लू डॉटेड लाइन के बाद वाला हिस्सा पेज 3 में आएगा और उसके नीचे का हिस्सा पेज 4 में आएगा। आप पेज ब्रेक का यूज करके इसको बस सिंपल यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए माउस के थ्रू, एडजस्ट कर लेगा वो, आपका एक A4 साइज में लैंडस्केप ओरिएंटेशन में सारे कॉलम को एडजस्ट कर देगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं देगा कि आपका जो टेक्स्ट प्रिंट होगा वो कितना उसका फॉन्ट साइज विजिबल होगा या नहीं होगा। मतलब आपका फॉन्ट साइज ठीक ठाक रहेगा कि बेकार रहेगा, कैसा रहेगा देख लेते हैं। Ctrl+F2 शॉर्टकट है, देखिए ठीक ठाक है। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलम एक्स्ट्रा हो जाते हैं और कॉलम एक्स्ट्राज रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आपका जो क्रॉस लिस्ट बनता है, रिजल्ट बनता है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका, जब हम पेज ब्रेक व्यू का यूज करते हैं, मतलब कब, जब बिना कॉलम को छोटा किए हुए, देखिए हम यहाँ पर एडमिशन नंबर को छोटा कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को छोटा कर सकते हैं, मदर्स नेम को छोटा कर सकते हैं, फादर नेम के भी कॉलम के विथ को छोटा कर सकते हैं, रोल नंबर को भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो जब आपके पास और ज्यादा कॉलम हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, इनको
जितना हो सके इनका नेचुरल विड्थ पे, जो इनका एक्चुअल स्पेस चाहिए उस स्पेस पे आप इनको ले आइए। कैसे लाएंगे? दो कॉलम के बीच में ऊपर में आपको एक ये लाइन दिख रहा है जी और एच के बीच में, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, एडजस्ट कर लेगा। आई और जे के बीच में एक लाइन दिख रहा है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, एडजस्ट कर लेगा। ए और बी के बीच में एक लाइन दिख रहा है डॉट बॉर्डर, इसको क्लिक कर दीजिए, कर लेगा। तो जब भी आपको इस तरह से कॉलम का एक्चुअल हाइट या विड्थ को एडजस्ट करना है तो आप उसको डबल क्लिक कर दीजिए, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है। इतना करने के बाद क्या होता है कि अगर आपका और भी एक्स्ट्रा कॉलम है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिनारियो आएंगे जब आपके एक्स्ट्रा कॉलम और होंगे, तो उस केस में क्या कीजिए, आप पेज लेआउट में जाइए और मार्जिन को कम कीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट अभी ये एडजस्ट टू 81 है, ये दिख रहा है, यानी ये ठीक ठाक साइज पे प्रिंट निकलेगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका आपका जो बॉस है थोड़ा सा एल्डर है, दिखने में दिक्कत होती है, तो बहुत सारे लोग थोड़े छोटे फॉन्ट से इरिटेट होते हैं। तो मार्जिन पे आइए, मार्जिन पे आप देखिए टॉप पे कितना मार्जिन अभी आपका लेफ्ट है 1.9 1.9, इसको आप 1 पे जरूर ला सकते हैं। ठीक है, 0.3 पर भी हम लोग काम करते हैं। इससे क्या है कि आपको पेज ब्रेक व्यू का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आपका फॉन्ट जो एक्चुअल आपने टाइप किया है उसी फॉन्ट पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने इतना कर दिया, मेरा इतना स्पेस बच गया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप काम करें और पेज ब्रेक एक्सेल सीट में, और पेज आपको लग रहा है कि आपका डेटा एक सीट पे नहीं आ रहा है, नॉर्मल व्यू में लाने के लिए इसको नॉर्मल में व्यू में जाकर नॉर्मल में, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका डेटा एक सीट पे नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले चेक कीजिए क्या क्या चीजें चेक करनी है। फिर से बता रहा हूँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रैक्टिकल पर्पज से है, ये आपके थ्योरी या एग्जाम में कहीं पर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आपको यूज देखने को मिलेगा, मैं ये लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, आपका ये जब भी इस तरह का सीट हो, जब बहुत सारे कॉलम हो और आपका एक A4 साइज का लैंडस्केप में एडजस्ट करना हो, तो सबसे पहले आप देखिए कॉलम का विड्थ कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहा है, इस तरह से डबल क्लिक करके आप चेक कर लीजिए, वो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो उसको एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद आप जाइए मार्जिन पेज लेआउट में और मार्जिन को कम कीजिए। ठीक है, मार्जिन कम कीजिए। मार्जिन कम करने के बाद हमेशा मार्जिन कम करने के बाद इसमें इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस सेंटर पे लाएगा वो। और इसके बाद भी अगर आपका कॉलम एकोमोडेट नहीं हो रहा है एक A4 साइज पेपर में, then only you should go for an option that I have shown you just now. Which option? Page break view. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि पेज ब्रेक व्यू क्या करता है, आपका फॉन्ट साइज में वो कोई दिमाग नहीं लगाता है, फॉन्ट साइज को कितना छोटा हो जाए, वो 60 81 देखा था आपने रेशियो, वो 60% भी कर देगा, 57 भी कर देगा, लेकिन सारे टेक्स्ट को एडजस्ट कर देगा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में आप उसको 80-85% पे भी रेशियो पे निकाल सकते हैं, इवन 100% पे निकाल सकते हैं उसी स्पेस पे, क्योंकि हम अननेसेसरी स्पेस यूज करते हैं मार्जिन के थ्रू, अननेसेसरी स्पेस यूज करते हैं कॉलम के विड्थ के थ्रू। सो दिस इज हाउ द पेज ब्रेक ऑप्शन वर्क्स। आई होप आपको आज जितने सेशन थोड़ा लंबा गया होगा, आई एग्री, इस पेज ब्रेक को मैंने पर्पसली थोड़ा लंबा टाइम देकर समझाया, बट आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी टॉपिक है। आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।